So let's see. We'll see what is germination. First, let's see seed. Seed, what is seed? Seed is a part of plant, right? What is seed? Seed is a part of plant. You can see seed is a part of plant from which new plant grow. In my previous class, I have taught you that seed is present in seed is present in you can make reply through the chat mode also. Okay, you can make reply through the chat mode also, right? So seed is present inside the fruit, right? All of you are giving the correct answer. Seed is present inside fruit. This is the first. Okay, very good. So now second things which we have learned in our last class that seed contain. Next question is seed contain. What does seed contain? This is the fill in the blanks. You can, if you wish, you can answer in the chat mode. What does seed contain? Seed contain, yes, correct. I can see proper response. Seed contain baby plant inside. Okay. Seed contain baby plant. Baby plant is also called as then baby plant, baby plant inside, baby plant inside seed is also called as also called as what it is called. You can answer it in the chat mode. If you wish, you can answer. Baby plant inside the, okay, very good, very good. So baby plant inside the seed is also called as embryo. Okay, baby plant inside the seed is also called as embryo. Okay, now when it is a case of baby plant, it need the food. Which who provide the food? Who provide the food? The embryo get its nourishment by the fruit, right? So these are the things which we have learned in the previous class. Keeping mind of all these things, today we will proceed. Okay, I hope it is clear to you. Now you can see seed is the part of plant from which new plant grow. Now you can see the seeds come in different types of sizes, different types of shape, different types of colors. You can see this is also a seed. The weight of this seed is less than 1 gram. And similarly, you can see the coconut tree. Okay, you can see the similarly the coconut tree. What would be its weight? Its weight could be around the 2 kilograms. So what we have seen? We have seen the difference in the weight of the seed and difference in the shape and size of the seeds. अभी अगर तीसी का अगर हम सीड को देखेंगे 1 ग्राम से भी कम होता है. अभी हम जस्ट इसके पहले पिक्चर में भी दिखाए थे. ठीक है, यू कैन सी इट इज ओके. आई होप इट इज क्लियर टू यू. Now you can see here the seeds are of different type, different types. Seeds differ in shape and size. Okay, so seeds differ in shape and size. What we can see? Seeds differ. Seeds differ in shape and size. Okay, they differ in shape and size, right?
shape and size. Now you can see the different types of seed in the picture, which are differing by the shape and size. Okay. And finally, next, moving to the next, seeds are of two types, right? Seeds are of two types. One seed, एक सीड ऐसा होता है कि जिसको हम ओपन करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है? सीड्स आर ऑफ, देखो यहाँ पर वन सीड दैट कैन बी स्प्लिट इनटू द टू। आप अगर हम उसको ऐसे करके फाड़ें तो उसमें एक ही हाफ हो, मतलब वो सिंगल, उसमें कुछ नहीं हो। और एक सीड, जैसे हम मटर का देख लें, एप्पल का देख लें, ठीक है, या कद्दू के सीड को देखें, तो ये सारे सीड को जब हम ब्रेक करते हैं तो दो हाफ में ये टूटता है। तो पहला हमारा सीड दो तरीके का हम पढ़े, वो कौन सा पढ़े? सीड कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इस पिक्चर में जितने भी सीड्स दिख रहे हैं, चाहे वो राजमा का सीड हो, ठीक है, चाहे वो राजमा का सीड हो, या राजमा का सीड हो, दाल का सीड हो, पी का सीड हो, ये सारे सीड को जो हम ब्रेक करते हैं तो ये टू हाफ में टूट जाता है, ठीक है? आई होप यू गॉट इट। Pulses, mango, pea, and beans. These are the seeds which break into two halves. And now, otherwise, you can see which cannot be splitted into two halves, like maize, like wheat, like rice. Okay, the jowar. This cannot be broken into two halves. Okay. Now, finally, what we have conclude? अभी हम लोगों ने क्या conclude किया कि हमारा seed कितने तरह का होता है? हमारा our seed seed is of two type. First, which can be broken into two half. Broken, इसको इसका जरूरत हम लोग को बाद में भी हम इसको बताएंगे, ठीक है? Which can be broken in two half, right? Which can be broken in two half. And second, which cannot be broken in two half, right? Which cannot be broken in two half. Okay, in two half, right? Which cannot be broken into two half. I hope you got it. Okay. तो हमारा सीड जो है बेसिकली दो तरह का हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ठीक है? ये तुम्हारे बुक में पेज नंबर 16 में इट इज गिवन इन पेज नंबर 16। वी आर गोइंग टू डिस्कस पेज नंबर 16 of your book. This is the structure of seed, right? So you can see, let's learn about the structure of seed. यहाँ देख रहे होंगे सीड्स आर लाइक अ पार्सल्स, ठीक है? सीड कैसा है? वो पार्सल के जैसा होता है। पार्सल मतलब चिट्ठी के जैसा, इन्वेलप होता है, लाइक एनवेलप के अंदर में चिट्ठी होता है। तो सीड इज लाइक अ पार्सल, ठीक है? उसी के जैसा होता है कि अंदर में, इन्वेलप के अंदर में कुछ है। तो सीड इज लाइक अ पार्सल। अभी अमेजन से, फ्लिपकार्ट से जो भी कुछ आता है, देखे होगे अंदर में रहता है, बाहर में नहीं रहता, उस डब्बे के अंदर में रहता है। इट इज अ पार्सल। तो ठीक उसी प्रकार सीड भी हमारा क्या है? इट इज लाइक अ पार्सल, राइट? तो सीड अभी हम लोग देखेंगे, सीड इज लाइक अ पार्सल एंड हाउ इट बिहेव। लेट्स सी। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। नाउ द सीड, it is like अभी देखो बच्चों क्या है कि पहले भी, अभी पहले भी हम क्या बताए थे? वो सारे चीज सीड के अंदर में, वो सारी सीड के अंदर में हम पहले बताए थे। लेट्स सी, लेट मी ड्रॉ एनोटेट, ठीक है? एक सीड के अंदर में से व्हेन वी ओपन इट लाइक दिस, ठीक है, तो इसके अंदर में क्या होता है? बेबी प्लांट होता है, पहले भी बताए हैं, ठीक है? देयर इज बेबी प्लांट इनसाइड द सीड,
ठीक है, देयर इज बेबी प्लांट इनसाइड सीड, राइट, बेबी प्लांट इनसाइड सीड। ठीक है, सीड के अंदर में बेबी प्लांट होता है, हम पहले बताया भी है। अब ये बताओ कि अगर बेबी प्लांट है तो वो लिविंग थिंग है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बेबी प्लांट, तो दिस बेबी प्लांट इज लिविंग। ये कैसा है? ये लिविंग है। ठीक है, लिविंग है तो इसको क्या क्या चाहिए? अगर ये लिविंग है तो इसको कुछ चाहिए ना। पहला इसको नरिशमेंट चाहिए, मतलब फूड चाहिए। ठीक है, इसको नरिशमेंट चाहिए। और क्या चाहिए इसको? ब्रीदिंग चाहिए, एयर चाहिए मतलब। ठीक है, इसको ब्रीदिंग चाहिए मतलब एयर चाहिए। ठीक है, तो कम से कम तो बेसिक रिक्वायरमेंट दो चीज का है। तो ये सीड कंटेन बेबी प्लांट, बेबी प्लांट को ये सारा चीज चाहिए, तो ये सीड में ही मिलता है, उसको बाहर कहीं नहीं जाना है। अभी हमने क्या बताया कि सीड इज ए लाइक अ पार्सल। ठीक है, मैंने क्या बताया? सीड इज लाइक अ पार्सल। ठीक है, सीड इज लाइक अ पार्सल, और पार्सल में ये क्या कंटेन करता है? इट कंटेन बेबी प्लांट। ठीक है, ये क्या कंटेन करता है? इट कंटेन बेबी प्लांट। बेबी प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियो। ठीक है, तो एम्ब्रियो को ये दो चीज चाहिए, नरिशमेंट चाहिए और ब्रीदिंग चाहिए, तो सब सीड से ही उसको मिलता है। एंड वॉट एवर इट नीड, वॉट एवर द सीड नीड्स फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द ग्रोथ, इट गेट फ्रॉम देयर ओनली। उसको बाहर से कोई चीज नहीं मिलता है, उसको अंदर से ही मिलता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स, नाउ अभी देखेंगे हम लोग कैसे ये ग्रो करता है। देखो, बेबी प्लांट इनसाइड द सीड। अभी देखो यहाँ पर हम बता रहे थे, अभी बता रहे थे कि सीड के अंदर में क्या होता है? बेबी प्लांट होता है। देखो ये सीड के अंदर में, दिस इज कॉल्ड, सीड इज ब्रोकन इनटू टू हाफ। ठीक है, दिस इज, सीड इज ब्रोकन इनटू टू हाफ। ओके, यू कैन सी दिस इज ब्रोकन इनटू टू हाफ, राइट। यहां से देखो ये टू हाफ में इसको ब्रोक किया गया। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट हाफ, दिस इज फर्स्ट हाफ, and the this is the second half, right, this is second half, okay, सेकेंड हाफ। फिर और क्या है? देखो, सीड कंटेन एम्ब्रियो। ठीक है, ये क्या है? दिस इज द एम्ब्रियो विच यू कैन सी हियर। ओके, यही वाला एम्ब्रियो है जो सीड के अंदर में है। ठीक है, तो सीड क्या कंटेन करता है? एम्ब्रियो। एंड एम्ब्रियो इज आल्सो कॉल्ड एज बेबी प्लांट। ठीक है, इसको क्या चेक कहते हैं? बेबी प्लांट। इस बेबी प्लांट को क्या क्या चीज चाहिए? खाना पीना चाहिए और सांस लेने के लिए चाहिए। वो कहाँ से मिल जाता है? इसी सीड के अंदर से मिलेगा, इसके बाहर इसको नहीं जाना है, बाहर जाने पर मना है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव, ओके, लेट्स मूव, ओके। नाउ अभी देखो यहाँ पर, अब यहाँ देखेंगे आउटर कवरिंग, तो सीड का जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं। ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड एज सीड कोट। ठीक है, अब सीड कोट क्या करता है? सीड कोट प्रोटेक्ट करता है सीड को। ठीक है, सीड कोट प्रोटेक्ट द सीड। ओके, आई होप यू गॉट। अब सीड कोड क्या करता है, इसको अपने कॉपी में यू कैन राइट इट डाउन। इट प्रोटेक्ट, protect the seed from any injury, from any injury, मतलब चोट ओट लगने से बचाता है। किसको बचाता है? वो एम्ब्रियो को बचाता है। ठीक है, ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट द सेड फ्रॉम any injury, particularly when the seed fall from the plant. ठीक है, I hope you got it. Now let's see. Okay, तो अभी हम लोग देखेंगे फिर आगे।
seed coat also protects the seed from the insect. Okay, also seed coat also protect सीड फ्रॉम, सीड नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर एम्ब्रियो बोलेंगे, एम्ब्रियो फ्रॉम इंसेक्ट। ठीक है, वो इंसेक्ट्स से भी बचाता है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो, और इट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो। नेक्स्ट, अब उसके बाद अब देखो सीड कोट का एक और काम क्या होता है कि जब बहुत गर्मी पड़ता है तो एम्ब्रियो सूख सकता है, तो एम्ब्रियो को सन के हीट से भी बचाता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। सीड कोट सीड कोट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम हीट ऑफ सन, फ्रॉम हीट ऑफ सन। तो हम देखें क्या कि एम्ब्रियो का काम क्या क्या है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का क्या क्या फंक्शन है, अभी हम लोग उसको देखें। ठीक है, एम्ब्रियो का क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन है एम्ब्रियो का पहला फंक्शन है प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजुरी, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजुरी। ओके, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजुरी। सेकंड ये क्या करता है, सेकंड इट प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट, protect from insects, you can take it down, it protect from insect। और third, protect from heat of sun। ठीक है, सन का हीट ज्यादा होगा तो उसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट ऑफ सन। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू दैट व्हाट इज फंक्शन ऑफ सीड कोट। ठीक है, सीड कोट का फंक्शन क्या है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। अब देखो सीड में क्या होता है, एक स्मॉल होल होता है। इन अ सीड कंटेन द स्मॉल होल। ठीक है, सीड क्या कंटेन करता है, स्मॉल होल कंटेन करता है। इस स्मॉल होल को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, माइक्रोपाइल। अब इस स्मॉल होल से दिस दिस माइक्रोपाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, व्हाट इज फंक्शन ऑफ दिस माइक्रोपाइल, it is responsible for air goes inside the embryo। Okay, air goes to embryo with the help of micropyle। ठीक है, एयर कहाँ कैसे जाता है एम्ब्रियो में, ये माइक्रोपाइल के मदद से जाता है। ठीक है, तो माइक्रोपाइल का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तो सीड में क्या होता है कि स्मॉल होल होता है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल से क्या होता है, वो एयर अंदर में जाता है, एयर और वाटर भी जाता है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स प्रोसीड हम लोग आगे की ओर बढ़े। अब देखते हैं, अभी देखो यहाँ पर वाटर कैसे अंदर में जाता है, ये एक इस एक्सपेरिमेंट से पता चल जाएगा। हम लोग 2 जार लेंगे, वी विल टेक 2 जार एंड पुट ड्राई बीन्स both in equal quantity। Now let the water be added in let the water be added in jar A and leave the jar B as it is। Now what you will notice, after 24 hours, after 24 hours, after 24 hours, what will you see? You will see after 24 hours, you will see that you will notice seeds have absorbed the water and up। ठीक है, you can see that seed has absorbed the water, seed has absorbed the water and it has swollen up। So how the air has moved inside, this is with the help of
micropyle, and here no water was given, hence it has not observed. Right. Next, proceed. Okay, now you can see अब हर सीट, अभी देखो हम सबसे पहले बताए थे कि वहां पर अभी जब हम पिक्चर ये दिखाए थे यहाँ पर, देखो तो यहाँ पे इसको टू सीड लीव हम दिखाए थे, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी जस्ट हम टू सीड लीव हम दिखाए थे, ठीक है। देखो करो, दिखाते हैं। I have shown you the two, see what is this, this is the two seed leaf, ठीक है। ये क्या है, this is two seed leaf, two seed leaf, okay। what is this, this is two seed leaf, okay। तो इसी को कहते हैं डाइकॉट। इसको जहां जहां दो, जहां टू, टू डाई का मतलब क्या होता है, टू। when the plant which seed have got the two seed leaf, it is called डाइकॉट, ठीक है। सीड लीफ को हम लोग क्या कहते हैं, सीड लीफ को हम लोग कॉटलीडॉन्स भी कहते हैं, कॉटलीडॉन, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉटलीडॉन कहते हैं। तो डाई मतलब दो, और कॉटलीडॉन्स के लिए आ गया कॉट, डाइकॉट मतलब द सीड विच हैज गॉट द टू सीड लीफ, इट इज कॉल्ड डाइकॉट प्लांट, ठीक है। इट इज कॉल्ड डाइकॉट प्लांट। I hope you have understood it, ठीक है। I hope you have pretty well understood it. Let's proceed. तो सीड, तो देखो अब क्या है कि सीड को जो भोजन चाहिए, जो फूड चाहिए, वो कहाँ से मिलता है, तो कॉटलीडॉन्स से मिलता है, ठीक है। सीड लीफ से मिलता है, कॉटलीडॉन्स से मिलता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जिस प्लांट में, जिस प्लांट में एक सीड लीव होता है, किसी किसी प्लांट में एक ही सीड लीव होता है, ठीक है। अभी हम लोग देखे ना डाइकॉट और मोनोकॉट, तो फिर से हम लोग पढ़े, डाई का मतलब टू, डाई का मतलब डाई प्लस कॉटलीडॉन्स, कॉट मतलब डाई मतलब टू, कॉटलीडॉन्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइकॉट प्लांट। जिसमें एक, ठीक है, मोनो, मोनो मतलब वन, प्लस कॉट, मोनो कॉटलीडॉन्स, जिसमें एक ही कॉटलीडॉन्स रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकॉट प्लांट। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड, ठीक है। अब देखो सीड में जो है, एम्ब्रियो में दो पार्ट होता है, एक देखो इधर हो, ये वाला पार्ट हो गया, और दूसरा ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट से रूट बनता है, और ये वाला पार्ट से शूट बनता है, ठीक है। पिक्चर इट विल बिकम more clear, let's see। You can see tiny shoot, okay, two part you can see here। I hope, देखो यहाँ पर क्या क्या, टाइनी रूट और टाइनी शूट जो हम बताए। अब I hope it is clear to you। Now we will see the process of germination of seed। You can see this is germination। देखो seed, what is germination, germination मतलब, germination, germination, this is conversion of seed into baby plant, ठीक है, छोटा सा पौधा, conversion of seed into baby plant, this is called germination, this is called germination। और फिर बेबी प्लांट से क्या बनता है, वो ट्री बन गया, ट्री बन गया, तो फिर तुमको उसमें से सीड निकलेगा, फिर उससे सीड निकलेगा, ठीक है।
ट्री बन गया तो फिर उससे सीड निकलेगा, फिर सीड से बेबी प्लांट निकलेगा, फिर बेबी प्लांट बड़ा होकर ट्री बनेगा, फिर उससे सीड बनेगा। द प्रोसेस, दिस प्रोसेस गोज ऑन। ठीक है, दिस प्रोसेस गोज ऑन। ठीक है, लेट्स सी। फर्स्ट सीड देखो क्या होता है, पहले सीड जब हम मिट्टी में डालते हैं तो वहां पर जो मिट्टी में पानी रहता है उसको ऑब्जर्व करता है, और सीड का साइज पानी को ऑब्जर्व करने से बड़ा होता जाता है। ठीक है, अब वो क्या होता है कि वो जो है वो बड़ा होता जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो बड़ा होता जाता है। अब देखो साइज उसका बड़ा हो रहा है। जब फिर थोड़े दिन के बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम एम्ब्रियो फाइनली ब्रेक्स अप। ठीक है, वो ब्रेकअप कर जाता है, और सीड से सीड कोट ब्रेकअप करता है, मतलब एम्ब्रियो बाहर आता है, बेबी प्लांट बाहर आता है। ठीक है, और बेबी प्लांट जैसे ही बाहर आता है, यू कैन सी दिस इज द एम्ब्रियो, दिस इज द सीड हैज ब्रोकन। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर दैट सीड हैज ब्रोकन। ठीक है, सीड हैज broken। okay, seed has broken। okay, so पहले क्या होता है, फर्स्ट when we plant the seed, planting of seed in soil। ठीक है, प्लांट ऑफ सीड इन soil, जब हम क्या करते हैं, मिट्टी में सीड को डालते हैं तो क्या होता है, तो उसका वाटर ऑब्जर्व करता है, देन इट ऑब्जर्व द वाटर इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, वो क्या करता है, वाटर इज ऑब्जर्व्ड। फिर क्या होता है, सीड साइज ग्रोज अप, सीड साइज ग्रोज अप, सीड का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, और फाइनली एम्ब्रियो कम्स आउट। एम्ब्रियो एम्ब्रियो कम्स आउट। ठीक है, एम्ब्रियो बाहर आता है। ठीक है, जब एम्ब्रियो बाहर आ जाता है, ठीक है, फाइनली एम्ब्रियो कम्स आउट। नाउ फिर देखो, जैसे ही एम्ब्रियो बाहर आता है, तभी तुम देख रहे होगे यहाँ पर सबसे पहले क्या, जब जैसे ही एम्ब्रियो बाहर आता है तो सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले देखो जैसे ही एम्ब्रियो बाहर आया, देखो यहाँ पर क्या बना, सबसे पहले यहाँ पर रूट बना। ठीक है, सबसे पहले क्या बना, रूट बना। ठीक है, अब रूट बना, और फिर उसके बाद देखो क्या बनेगा, फिर उसके बाद रूट नीचे चला जाता है, और यहाँ पर बेबी प्लांट का सॉइल के साथ पहला कांटेक्ट, और फिर वो जो है सॉइल से वाटर मिनरल्स लेने लगता है। और फिर देखो, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहला भी हमने क्या बताया कि सीड में से दो चीज निकलता है, एक जो रूट बनाता है, और दूसरा जो सूट बनाता है। ठीक है, सूट बनाता है। तो देखो रूट, सबसे पहले बेबी प्लांट से रूट बनता है और इसका सॉइल से कांटेक्ट होता है। जैसे ही इसका सॉइल से कांटेक्ट होता है, वो बेबी प्लांट आत्मनिर्भर हो जाता है, और सारा चीज वो जो है वो सॉइल से लेने लगता है, पानी, वाटर, मिनरल्स एटसेट्रा, ऑल इट स्टार्ट टेकिंग फ्रॉम द सॉइल। फिर उसके बाद सूट आता है। अब ये सूट कहाँ जाता है, तो सूट जो है टुवर्ड्स द अर्थ से ऊपर जाता है। ठीक है, और ये अर्थ से नीचे जाता है। ठीक है, सन के तरफ ये जाने लगता है, और इससे इसका ग्रोथ होता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ये देखो, इसको कॉटलेडन्स कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से हम देखते हैं, एक सीड जो है एक बेबी प्लांट में, सैपलिंग में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू।